अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है दिस कैफे इन इंडिया मोस्टली एम्प्लॉयज ट्रांसजेंडर पीपल। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमसे की है दीपेश सर ने, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। वैसे भी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ भी हो तो हम लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं वो वीडियोस देखना, क्योंकि मेरी तो मतलब एक बोलते हैं ना वो दिली क्या बोलेगा उसको लगाओ। हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो प्रोग्रेस करें लाइफ में। तो एनीवे अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। लेकिन वीडियो देखने से पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे दूसरे चैनल पर हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका है, प्लीज जाइए और देखिए और सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। I'm Nimish Shetty. I'm the owner and I run a cafe called Third Eye Cafe, which hires transgender people. We chose this name Third Eye because we knew that we are going to start a restaurant which is going to employ the third gender. So the third is from the third gender and the eye is supposed to mean that we have a different perspective. So we wanted to show the third perspective of us to the society. Very nice. I love the idea. मैं खुद। So how long have you been operating this particular restaurant? It's been more than 1.5 years. We started in 2017, so it's going to be almost 2 years by the end of this year. How did this idea of hiring transgender people came about? It's when I was in 2011, 2012, when I was doing a research for my college thesis. I was doing a study on the third gender, the transgender community. That is the first time I came in touch with the community in Bombay and across the country. That is when I understood the basic needs of the community, the problems they face, and as well as the people's thought about the community. The cause was to give them mainstream jobs and get them into the mainstream, to get them more familiar to people, and that is how you will get to know people and get people will accept you. When you started this restaurant, was there any backlash from people for this idea altogether? So, frankly, we didn't get a lot of backlash from the people not accepting this. A lot of people had a backlash on how would you do it, like how would you manage this, and will you get the right kind of people, or will they be able to pull this off? So that was the negative part of it. But there are always few people who say something bad. What if somebody says that this restaurant is a gimmick to pull out customers, and this idea altogether is? What do you have to say about that? That is one of the backlashes, I would say, that we get this a little. But then it doesn't matter to us because we do not claim anything. You will never see a poster which says the transgender restaurant of the city. You'll never see a banner which says we are the first ones to do this. We are a different restaurant. We never say all of that. So our stand is very clear on that. This is nothing to do with anyone, I suppose. This is only to do with me and my team and my belief of what we want to do. Exactly. How did you manage to find people who will, be working in the kitchen and all that? See, I was involved with a few NGOs since 2012. I was involved with a few people who are considered to be big in the community. So these were the guys who helped me through. So I was in touch with a lot of people in Bombay as well as a little places around. So then we got an entire team which is open to every caste and every gender. We have some people from different states. We have some people from different cities. So there are people who are coming with different background, different cultures. So now we have a very inclusive culture. So who are your customers in general? We get a varied kind of an audience on varied tastes. Like on a weekday, we get a lot of young college guys. Say on a weekend, we get a lot of corporate crowd. We get a lot of family crowd on Sundays. So it depends on the kind of the day it is. Since it's very inclusive, we always have children also. We have senior citizens coming in, and they have also loved it. So that is which gives us a lot of pride and a lot of happiness that elderly people are also supporting this cause.
How do customers react when they come to know that the staff here is transgender? Like the last year when we were new, a lot of them didn't know that this is something which is different. So then a lot of people were in awe, saying what is happening, and they used to look at them in a very inquisitive manner, how they're working and all of that. They were very pleasant to see. But once they know, customers have never ever complained about their presence hurting their psyche or hurting their thought of frame. We have never had a guest saying we don't want to be served by them. यहाँ पे काम करने से पहले आपका क्या काम करते थे आप? इससे पहले मैं 2 साल पूना में पैकिंग करती थी। ऑप्शन कुछ नहीं था, फैमिली छोड़ी थी तो खुद का गुजर तो कुछ करना था, तो पूना में पैकिंग करती थी। काम मतलब काम ही बोल सकते हो, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर वो एक धब्बा है कि ट्रांसजेंडर कहा तो पैकिंग, प्रॉस्टिट्यूट, बस ये 2 ही काम कर सकते और कुछ नहीं। कितना मुश्किल होता है कि ट्रांसजेंडर होने के बावजूद आपको एक रेस्टोरेंट में जॉब मिले? रेस्टोरेंट ही नहीं तो ट्रांसजेंडर होने के बावजूद मैंने और कई जगह पे जॉब के लिए ट्राई किया था, बट हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि लोगों को काम से मतलब नहीं था, दिखावे से मतलब था। आजकल के लोग दिखावे पे जाते हैं कि बंदा कैसा दिखता है। इन जनरल आपको इंडिया में कैसा लगता है कि ट्रांसजेंडर को कैसे ट्रीट किया जाता है? शहरों में, गांव में, हर जगह किस तरीके से ट्रांसजेंडर को ट्रीट किया जाता है? ट्रीट किया जाता है अगर पूछोगे तो मेरी खुद की बात बताऊं तो ट्रीट, इसका मतलब तो नहीं पता, पर जैसे मैं इस कैफ़े में एक मेरा भी नाम है या फिर वजूद है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ ट्रांसजेंडर होने के बावजूद, बट इस कैफ़े से अगर बाहर निकलूँ तो देखने वालों का नज़रिया तो नहीं बदलता। देखने वाला एक ही बात बोलता है, ये ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर्स मतलब नीचे के लेवल का, तो हर एक कोई इंसान ट्रांसजेंडर को कम ही समझता है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, अगर आपको ये मौका नहीं मिला था तो आप क्या कर रहे होंगे इस वक्त? अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं सेम रेगुलर जो नॉर्मल ट्रांसजेंडर्स है उनकी तरह पैकिंग करती रहती, अपनी ज़िंदगी दिन भर वहाँ पे रास्ते पे भीख मांगो, शाम को घर पे जाओ, टेंशन में खाना खा पी के सो जाओ। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, और जो दूसरे काम करने वाले हैं उनके साथ भी आपकी क्या रिश्ते? कैफ़े में आने के बाद एक फैमिली जैसी मिल गई, क्योंकि कैफ़े अभी कंटिन्यू हम लोग यहीं पे रहते, एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे को अच्छे से जानते, तो एक फैमिली की तरह ट्रीट होता। और गेस्ट की अगर बात करोगे तो गेस्ट यहाँ पे ऐसे आते कि अभी फैमिली की तरह ज्वाइन हो गए। आते ही दरवाजे पे आते ही पहले बोलते अरे माही की तरह कैसी है, क्या है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो अपना आया, तो गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, कोई तो फैमिली मेम्बर हमारा आया, ऐसे हम लोग ट्रीट करते हैं। ये थर्ड आई कैफ़े सिर्फ कैफ़े नहीं, तो ऐसे कितने सारे गेस्ट हैं जिनका ये घर बन चुका है। As a person outside the community of transgender people, how do you think they struggle? A lot of abuse, sometimes physical, sometimes mental abuse, social abuse. It's not easy to hide being a transgender. So it's that thing where people will obviously see you and judge you as when they see you at the first time. And the major factor hardship would be education. Most of them are not highly educated or even 10th grade pass. So that is a problem because they get out of school, they leave their households, they come to the community, they live with the community. So education is not a big part of their lives. So that has to change, and that is the biggest difficulty because once you don't get educated, you don't have a lot of resources to get yourself upgraded. So did you ever feel like I need to quit this job? A lot of times, like there have been times when we don't have a good month of business. It's never easy, and every second month we get a feeling that why are we doing this? Somehow we make it happen, and that's the beauty of it. Like that's the beauty of the team, that they have it in them. It's just that ups and downs always come to you. Always there will be some person who's not happy with you. Through this restaurant, do you think there is a change happening in the society towards transgender? Obviously, there is a lot of change happening. People have shown that we are ready to accept a concept which is based on minorities. It's based on people who have never been seen
on mainstream jobs. And the second is people are also appreciated the fact that the community is doing something which is beyond odd jobs. They are ready to take up hardships, they are ready to give time to a dedicated mainstream job, and they are ready to learn something new to show their worth. So what are your future plans? Are you planning to open more restaurants like this? We want to expand now, because now, since I said, we have a few people lined up to join the team and we don't have vacancies, so we want to get into different cities to expand, and we were looking for franchisees, or we're looking for investors and partners to help us get there, because we are predominantly Bombay based. We want to get into bigger cities in the country and help other people get a job. Not only restaurant, we should have more sectors where people are inclusive, and especially the transgender population should be taken and given jobs according to the eligibility. There should be more revenues and more different fields where they can explore. So that I would expect. ट्रांसजेंडर्स जो है वो हमारी सोसाइटी का जो है वो हिस्सा है जिसे जो है हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और मोस्टली लोग तो जो है ना वो इसे जो है ना नासूर समझते हैं हमारी सोसाइटी में। नासूर मतलब? अब नासूर मतलब वो चीज जो किसी काम की नहीं होती। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऑनेस्टली आई फील सो बैड जब भी मैं जाऊं बाहर, और बाकी में सिर्फ दो काम होते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, या तो वो लोग भीख मांग रहे होते हैं सिग्नल्स वगैरह पर खड़े होकर, ठीक है, या फिर दूसरा उनके पास एक ही ऑप्शन होता है प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, जो सिग्नल वगैरह पर भीख मांगते हैं ना, तो अक्सर ये भी देखने में वहां पे आता है जो गाड़ियों में लोग होते हैं जिसे वो भीख मांगते हैं, वो उन्हें मजबूर भी करते हैं उनके साथ चलने के लिए। मतलब इस चीज का वैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि लड़कों को ज्यादा आइडिया होता है इन चीजों का, तो नहीं ऑन है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा मैंने उनको भीख मांगते हुए देखा। और हाँ, मैंने एक दफा एक कराची की ट्रांसजेंडर थी, उनका मैंने देखा था, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट देखी थी, उसमें भी मैंने ये चीज देखी थी कि अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो रात को लेट नाइट सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और फिर लोग उनको लेकर चले जाते हैं। मतलब यार प्लीज छोड़ दो, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह की मेंटालिटी है हमारे यहाँ पर लोगों की। वैसे आपने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देनी, लेकिन आपने उनको छोड़ना भी नहीं है। अच्छा, अगर ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए ना, तो उन्हें हमारे जो माशरा, हमारा जो समाज है, उसमें शुरू से ही रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो उनके जो पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं वही एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें कर भी लें, ठीक है, तो जब वो आगे उसके वो यानी कि एज में ऊपर जाता है, तो उसके बाद जब वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है जहां तक वो पढ़ सके, तो उससे वो जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं ना, वो उसे इतना ज्यादा तंग करते हैं ना कि वो स्टडी से, अपनी हर चीज से भाग जाता है। मोस्टली यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर इतने पढ़े नहीं होते, और जो पढ़े होते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने पढ़े यानी कि पढ़ाई के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात फेस की हैं। बिल्कुल, मैं मौजम की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोगों ने, आई थिंक पहले भी एक ट्रांसजेंडर की वीडियो पर रिएक्ट किया था, और उस पर भी हम लोगों ने ये बात बोली थी कि सबसे पहले जो घर वाले हैं ना, उनको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। हमारा कल्चर तो नो डाउट हमारी सोसाइटी ने इस तरह का बना दिया है कि कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर पेरेंट्स स्टैंड लेंगे और वो एम्बैरस नहीं होंगे उस बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करेगी एक दिन। लेकिन ये वाकई में प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके आगे बढ़ने में कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं। जैसे उनके स्कूल मेट्स होते हैं, वो उनको तंग करना, छेड़ना, नो डाउट वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लड़कियां बहुत डिफरेंट बिहेव करती हैं, कुछ लड़के बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं। इट डजंट मीन कि वो लोग कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं या उनको हम कह लेंगे वो थर्ड जेंडर है, ऐसा नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं पर सोसाइटी में चेंज नजर भी आ रहा है, और वो मुझे इस तरीके से नजर आता है, चलो वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, अब आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जैसे पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर एंकर हैं,
उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ी, वो पूरी से इवन के मौसम मुझे इतना दुख हुआ उनकी स्टोरी सुन के कि उन्होंने बताया कि वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने अपने बाल काट लिए थे। तो ये छोटी चीजें नहीं है। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने मौसम को भेजा है सब इंस्पेक्टर, और मुझे इतनी खुशी, और जब भी कोई मैं ऐसी पोस्ट देखूं मैं मौसम के साथ जरूर शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत खुशी होती है। फिर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में भी एक ट्रांसजेंडर जो वो मतलब किसी पोस्ट पर आई हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन गवर्नमेंट को जो है इन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। इन लोगों की जो है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी एजुकेशन पे उन्हें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, उन्हें आगे लेके आने की जरूरत है क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। और जैसे अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में जैसे उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट के अंदर तो सब एक फैमिली जैसा है, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों के लिए ट्रांसजेंडर्स ही हैं। और जैसे ऑनर है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे तो माहौल अंदर ओके है, लेकिन बाहर की दुनिया में उन्हें बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती हैं, प्रेशर होता है, फिजिकली आपको अब्यूज किया जाता है। लेकिन मैं ये एक चीज सोचती हूँ मौसम की, देखो अगर एक आम इंसान इतने अच्छे आइडिया के साथ आ सकता है तो जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होकर इनकी कम्युनिटी के साथ। और हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है कि हम ये बोलें कि इनकी कम्युनिटी के साथ कि लाइक जो उनको नॉर्मल ट्रीट करें ना हम लोग, क्योंकि इसमें उनका कोई उनकी गलती नहीं है कि वो इस तरह से है, तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड मेरा ख्याल में कि इस तरह के और आइडियाज आना चाहिए। और जो रेस्टोरेंट के ऑनर उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि सिर्फ ये नहीं कि रेस्टोरेंट की हद तक हर सेक्टर में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनकी बहुत अच्छी थिंकिंग है और बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने लिया है इन लोगों के लिए और इन लोगों को जो है रोजगार देने के लिए। क्योंकि वाकई आपकी वाली बात कि मोस्टली ट्रांसजेंडर्स जो है हमारे यहाँ पे या तो मांगने के प्रोफेशन में होते हैं या प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में, और वो जो है अगर उन लोगों को इस साइड पे लेकर आ रहे हैं तो ये उनकी तो बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। और पता है मैंने एक और ट्रांसजेंडर की डॉक्यूमेंट्री देखी थी एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट सो बैड कि उसमें लाइक शी वाज सेइंग कि मैं डेड हूँ, मतलब मैं चलती फिरती तो हूँ, मैं खाना भी खाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला ना बीच में कि जब उन्होंने पूछा कि आप अगर इस जॉब पर नहीं होती तो आप क्या करती, तो उन्होंने बोला कि लाइक मैं उसी तरीके से भीख मांगती, घर में जाती, खाना खाती और परेशानी में और सो जाती। तो वो चीज़ भी उन लोगों का मतलब जो ट्रांसजेंडर थी उन्होंने सेम यही चीज़ बोली। और दूसरा ये कि अगर हम ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को देखें मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है, मतलब भीख मांग के वो क्या है, बस अपना खाना पूरा करते हैं और फिर उसके अलावा उनको जितना फिजिकली अब्यूज किया जाता है, मुझे लगता है कि उन बेचारों की ना अपनी जिंदगी मतलब दे आर लाइक डेड पीपल, कि उनकी अपनी कोई सोच या सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं, क्योंकि एक आम इंसान इतना ज्यादा कुचल देता है उनकी इज्जत नफ्स को कि मुझे लगता है कि वो लोग समझते हैं कि हम लोग यूजलेस लोग हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चेंज मौजम इंडियन सोसाइटी में देखा है कि अब वहां पर ट्रांसजेंडर्स को लेकर काफी ज्यादा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। और हमारे यहाँ पर भी आई डोंट नो बहुत ज्यादा चेंज हुआ, पहले से बहुत ज्यादा चेंज नो डाउट हुआ है। और एक स्टोरी मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे घर में जब मतलब हमारे भाई की शादी हुई थी तो यू नो ट्रांसजेंडर्स आते हैं और वो डांसर, पता नहीं खुद ही उनको कहाँ से पता चल जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आए और फिर उसके साथ हमने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया, यानी कि हम लोगों ने उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व की और फिर साथ में मिठाई और पैसे वगैरह दिए, और वो इतने खुश थे। और यकीन करें कि जब भी वो आते हैं तो हमेशा हमेशा वो हमें इतनी दुआएं देकर जाते हैं, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ उनको देकर भेजें। लेकिन ये कोई जॉब नहीं है, हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि हम लोगों को ये वाले टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, और इसी के साथ हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।